Welcome to the session, guys. So today we are going to start a special equations, and we will learn what is special about this special equation. ऐसा क्या है कि इसका नाम ही स्पेशल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस पार्ट, बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, we are going to take a doubt of the last session. So I see lots of new people joining the session. So you guys have to wait for around, you can say, 20 minutes. I will try to take all the doubts within a 20 minutes. Then we will start today's part, like that is special equations. And anyone can join from here because it is a new, not you can say a very tough topic. It is easy to go and it is very important. When I mention it very important, it means it will like come under a QA also and DILR also. Like the CAD will going to test your knowledge in DILR too. तो आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू must watch. Either you can watch a live or you can watch a recording, whatever comfortable to you. Also, those who are watching recording, for them the simple thing is watch at 1.25x. Might be I was little bit slow, or you can skip some part अगर आपको लगता है कि वो आ रहा है तो उसे skip करके आगे बढ़ो. But I would recommend you can watch it. Okay, so yeah, there are lots of people in the session. So this is my first session. Is there any way I can get a recording? Nidhi, you can get a recording. Okay, so the recording पूछा ही है आपने तो give me a moment. Okay, so निधि का क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा. So yeah, recording. See, there is a two place you will get a recording. First one is YT चैनल पे देख लो हमारे. Just visit a YT, YouTube पे जाओ and just search prep भी. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा. ठीक है, you will get a playlist for LRDI, you will get a playlist for QA, you will get a playlist for VARC. ओके, वीआर में आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगी. माइट बी देयर वाज आरसी एंड सीआर, देन वीए आल्सो. soon we are going to start VA part, and today we had a RC CR session, but due to some urgency the mentor is not available. तो आज ही नहीं होगा, ये कल हो जाएगा. So those who haven't watched the last CR session, go through it और कल लाइव अटेंड कर लेना. Okay, RC session we have took two classes till now, and yeah, we are going to continue it by this week. So जिन्होंने अभी तक दो क्लासेस नहीं देखा वो देख लो, और उसके बाद से लाइव अटेंड करना. जो भी आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो. राइट, तो वन इज यहाँ पे वाईटी पे मिल जाएगा. सेकंड, विजिट अ prepbit.in. ओके, prepbit.in पे जाओ, वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है. ओके, वी हैव गिवन ए स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. एंड वो कोर्स में आप फ्री में एनरोल कर सकते हो. वी आर नॉट चार्जिंग एनी कॉस्ट, यू कैन एनरोल इट इन अ फ्री. एंड जो भी होगा वहाँ पे सारे सेशंस अपडेट होते हैं इन स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो अगर वैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, अब वैसे नहीं करना है. अब देखो यहाँ पे लॉगिन का इशू है, बट अगर इंटरेस्ट आता है आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है अच्छे से, तो यहाँ पे लॉगिन करके पढ़ सकते हो. अदरवाइज द बेस्ट इज वाईटी. चुपचाप जाओ वहाँ पे देख लो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट पार्ट. पहले हम डाउट ले लेते हैं, उसके बाद स्पेशल सेशन मतलब इक्वेशन भी करना है. स्पेशल इक्वेशन है तो स्पेशल ही होगा. एंड या गाइस, लास्ट टाइम मैं ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इशू हो रहा था, एंड वी हैवंट गॉट अ आंसर फॉर दिस वन. बट आंसर इसमें ही है. हम मिस्टेक कर रहे थे, लाइक मैं मिस्टेक कर रहा था. हम मतलब क्या, मैं ही कर रहा था मिस्टेक. मैं कुछ इग्नोर कर रहा था और मैं कुछ मिस कर रहा था. तो सी है, दोज हु हैव वॉच्ड द लास्ट क्लास यू नो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं. बट जिन्होंने नहीं किया है, इट्स ओके. तो सी गाइज, यहाँ पे करना क्या था. चार ब्रदर है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. इन चारों ने मिलके कार खरीदा है. दे हैव बॉट अ कार, and the cost was of the car is 2400, like 2,40,000. So Ram paid half the amount of the total paid by the three others. So as I told you, if the other three paid a O amount, so Ram paid half of this, right? So Ram upon other, it will going to be what, 1/2. And if Ram was paid one part and others paid two part, it means the total pay was three part, right guys? So those who are new, I hope आपको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ. So if Ram paid
two part. Okay, sorry, one part and others paid two part. So it means the total part was three, right? So three part की वैल्यू कितने मेरे पास गिवन, देयर वाज अ 2400 लाइक 2,40,000. ओके, अब इट इज 2,40,000. तो वन पार्ट की वैल्यू कितने हो गया, अगर यार थ्री है तो मैं थ्री से अगर इससे कैंसिल कर दूं और इसे भी कैंसिल कर दूं तो आई विल गेट 80,000, राइट? So from here I got 80,000. Second one, that Shatrughan paid one fifth of the total amount. Like Shatrughan paid one fifth of the total amount paid by other three brothers. It means if other three paid O amount, okay, this is O not zero, O amount. So the Shatrughan paid one fifth of this amount, right? It means Shatrughan upon others. It will nothing but one upon five. So if Shatrughan paid one part and other paid five parts, so it means the total part was six. So six की वैल्यू कितने मुझे गिवन, सिक्स की वैल्यू इज गिवन टू मी इज 2400, like 2,40,000. So one part की वैल्यू कितने आ गई, if I cancel it by 6 and this is also by 6, I will get 6 4 the 24. तो यहाँ से मुझे 40,000 मिल गया. तो राम ने कितना पे किया, राम पेड 80,000, शत्रुघ्न पेड 40,000. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, भरत पेड 5/19 ऑफ द टोटल अमाउंट. लाइक भरत ने जो था, ही पेड 5/19 ऑफ टोटल अमाउंट व्हाट द अदर्स थ्री पेड. जो अदर तीन ने पे किया उसका टोटल अमाउंट का 5/19 इसने पे किया. इट मीन्स फ्रॉम हियर आई विल गेट भरत अपॉन अदर्स इज नथिंग बट 5/19. मतलब भरत ने अगर 5 पार्ट पे किया तो अदर ने 19th पार्ट पे किया. मतलब टोटल कितने पार्ट हो गए, टोटल 24 पार्ट्स हो गए. अगर मैं टोटल ऐड कर दूं इन्हें, 5 + 9 वाज भी 24. तो टोटल अमाउंट इज 24 एंड विच इज इक्वल टू 2400, like 2,40,000. So one part is equal to what, 10,000. बट लास्ट टाइम मैं क्या कर रहा था, मैं वन इसको ही कैलकुलेट ऐड कर रहा था. बट हाउ मच भरत पेड 5 पार्ट. सो आई हैव टू काउंट 5 पार्ट हियर. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5, राइट? आई एम मल्टीप्लाइंग हियर बाय 5, हियर also 5. So it will be equal to 50,000. So Ram paid 80,000, Shatrughan paid 40,000, Bharat paid how much? 50,000. So 40 plus 50, 90, 90 plus 80, 170. If these three people paid 170, like 1,70,000, and the total amount is 2,40,000, if we minus these, like अगर मैं इसे okay, solve करूँ तो I will get what? I will get a 70,000. So this 70,000 must be paid by Lakshman, right guys? So the answer is option C, 70,000. Hope it is clear. समझे क्या गलती हो रही थी, लास्ट टाइम आई एम कैलकुलेटिंग ओनली वन पार्ट बट आई फॉरगेट दैट भरत पेड अ 5 पार्ट. So that's why I clarified here कि he is paid a 5 part, not one part. If you are clear, let's go ahead. And this question was similar question. I hope you got an answer. If not, do I have to solve it? Those were in last session. Do let me know. Anshu, Avnit, Shivani, Gautam. Solve करना है, गजब है भाई. Okay, let's see here. Dinesh, Eshwar, Ganesh, Harish had a total of 120 marbles. So they had 120 marbles in total. ठीक है, मतलब D plus E plus G plus H, टोटल इज 120. यार 120 कैसे लिख रहा हूँ मैं कचरे जैसा, 120 marbles. So now read here in a similar manner. We have to pursue this kind of question. अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, you have to go through a similar logic जैसे मैंने अभी किया. आपको सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल देखना है. दिनेश was okay, the number of marbles Dinesh was half the total number of marbles with the others. It means if दिनेश के पास जितना नंबर है, कितना है वो इन तीनों के पास जितना भी है ना उसका आधा है. The 50% of these three. So these three I'm simply saying these are the others. I'm not counting the A E G H. ऐसे मैं पूरा लिखने से बेटर मैं लिख रहा हूँ इससे others. So Dinesh have half of the others. जितना others के पास होगा उसका half होगा. It means from here, I will get Dinesh upon others is nothing but 1/2. So if Dinesh have one part of marbles, others have two parts of marble. It means the total parts of marble is 3. And the value for 3 is 120. It is given to me. So total अगर 120 है और ये one part था, ये two part, और total 120 था.
तो यहाँ से वन पार्ट मुझे कितना मिल रहा है? द वन पार्ट शुड बी नथिंग बट 3/4, दैट इज 40। सो दिनेश हैज 40 मार्बल्स। यहाँ से पता चल गया दिनेश के पास कितना मार्बल्स है, 40। या 26 इज द आंसर, राइट। जिसका 26 आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो देख लो, मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, देन सेकंड पर्सन, ऐश्वर्य। ऐश्वर, ओके। ऐश्वर ई वाज द पर्सन, ही हैड 1/3 ऑफ द टोटल मार्बल्स विद अदर्स। सो अदर्स के पास कितना भी होगा मुझे नहीं पता। इसका कितना, इसका 1/3 है। सो दैट इज नथिंग बट ई अपॉन अदर। अभी जो वो है अदर है, ये यहाँ पे जा रहा है, बिकॉज हियर इट इज इन मल्टीप्लाई, यहाँ पे जा रहा है तो डिवाइड में चला जा रहा है। सो इट इज नथिंग बट 1/3। सो E had one part of marbles, other three had a three part of marbles. It means the total part is 4. The value for 4 is 120. Similarly, here we will get a value for 1 is a 4, 3, that will 30. So E had 30 marbles. Great guys, great. अगर सबके आंसर आ रहे हो 26 तो great. Similarly, G, अब G निकाल दो यार, मैं G डायरेक्ट कर देता हूँ। G upon other is nothing but 1/4. 1/4, so total value should be a 5. So 5 की वैल्यू कितने, 120. So value for 1 should be a 24. Okay, so G has 24 marbles. So if we count all these, so this is nothing but 70, 70 plus 94, 94 minus 126. So S should be nothing but 120 minus 94. So if you minus this, you will get a 26 as an answer. So answer for this question is 26. Okay, so let's go ahead. ये क्लियर है तो ये वाला, ये मत बोलना इसमें मौत आ गई। मैं तो पहले ही बोला था इस पे तो मौत आती है। ये बन गया। Are you guys able to solve this one? If yes, do let me know. I have to go ahead. Rehana, कुछ बोल दो मेरे बादशाह, कैसे कर रहे हो? Yeah guys, one more thing, the great news ये है कि in India there is a very good happening. इंडिया मतलब अपने इंडिया की, भारत की बात कर रहा हूँ गाइस, ओके। हमारा देश भारत की बात कर रहे हैं हम। सो द ग्रेट थिंग हैपेंड टुडे, और यू कैन से काम पहले से चल रहा था। जो हमारा ग्रेट यूनिवर्सिटी है नालंदा, नालंदा, ये रिस्ट्रक्चर उसका पूरा बन चुका है वापस से, और ये फिर से स्टार्ट हो चुका है। एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। ओके, मतलब बाकी का पता नहीं मुझे क्या है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो दिस इज समथिंग द इम्पॉर्टेंट अपडेट टू यू गाइज। एंड आफ्टर 815 ईयर्स, इतने साल बाद ये वापस से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। बहुत से लोग आए थे इसे, मतलब बहुत सारी चीज़ हमारे यहाँ पे लॉस हुई है बहुत। यू कैन से अराउंड 9 लाख बुक्स एंड अदर थिंग। 9 लाख या 9 मिलियंस, आई डोंट नो एक्चुअल नंबर। बट बहुत सारे जो हमारे बुक्स थे, जो बहुत सारे नॉलेज थी हमारी, उसे तानाशाह, मतलब कुछ लोग आके ये करके, क्या कहते हैं उसे, नष्ट करके चले गए थे। बट या अब द प्राउड मोमेंट फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी को। नहीं तो अगर ये उस समय से अभी तक अगर इंडिया में रहता, तो वी आर द दिस वाज द यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड होता, ऑक्सफोर्ड से भी ज्यादा। ऑक्सफोर्ड 500 ईयर्स बाद बना था नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो सोच लो, ठीक है। एंड जो नॉलेज था यहाँ पे बहुत ज्यादा था। तो क्या गाइस, ये बताना था अपडेट। प्राउड मोमेंट है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। सबको मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ, जब से मैंने सुना है तब से। तो सोचा शेयर कर दूं। अच्छा, ये नहीं बना। लेट्स सी, लेट्स सी। ए सेज टू बी, आई एम 4 टाइम एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज ओल्ड एज यू आर। लेट्स से, बहुत गंदा है। ओके, ए है और ये बी है। व्हाट ए से टू बी, आई एम, लाइक मैं, ए बोल रहा है 4 टाइम एज ओल्ड एज यू वर, मैं जो हूँ 4 टाइम एज ओल्ड एज यू वर, व्हेन, व्हेन कब की बात कर रहा, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर। ठीक है, तो एक चलो एक ऐसे लिख लो, ए है प्रेजेंट,
मैंने बताया था प्रेजेंट एंड पास्ट करके लिखना कर कभी भी इसे इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेट्स से हियर इज द प्रेजेंट, हियर इज द पास्ट। और अगर ये दोनों पास्ट की बात करें तो समझ लीजिए सबसे, इट वाज द लास्ट पास्ट, ये थोड़ा सा प्रेजेंट वाला पास्ट। ठीक है। तो आई एम 4 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। मैं हूँ वो 4 टाइम था कब, एज एज ओल्ड एज यू वर, अभी जितने हो तुम। ओके लेट्स से राइट नाउ द बी इज एक्स। ओके सॉरी दैट टाइम बी वाज एक्स and a was 4 time of x. It is right now. Okay. When I was old as you are, कब, जितना तुम अभी हो तब मैं उतना था। यार क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि यार ये सबसे बेकार क्वेश्चन लगता है मुझे, बट क्या करे, करना पड़ता। आई एम 4 टाइम एज ओल्ड एज यू वर, यस दैट इज करेक्ट। when when I was when I was as old as you are, या करेक्ट, यही तो आएगा, आगे क्या है? सी द अनदर फैमिली मेंबर हु इज 26 ईयर ओल्ड, सो सी सम अनदर मेंबर ही इज अ 26 ईयर ओल्ड। ओके। द एज ऑफ सी इज एवरेज ऑफ ए एंड बी, तो ओके, तो सी का जो एज है दिस इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ए एंड बी का एवरेज यही होगा, राइट? एंड वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, so I would simply say this is a 26 year, so from here I will get a plus b is nothing but 52. So the present age of a plus b was 52, ये मुझे समझ में आ रहा है। फ्रॉम हियर इफ वी सी, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देख लूँ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ दिस टू, दिस मस्ट बी इक्वल टू, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू। लेट्स से फिर से एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, बिकॉज देर आर न्यू स्टूडेंट्स इन द सेशन। सो एग्जांपल के लिए ले लो। आई एम, ठीक है, मैं हूँ, आई, एंड द अदर पर्सन, कोई भी एक नाम बताओ। ओके, अंशु। व्हेन आई वाज 24, तो मैं अभी भी नहीं हुआ। व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड, अंशु माइट बी मे बी वाज 18 समथिंग। ठीक है। व्हेन आई वाज 18 ईयर ओल्ड, अंशु माइट बी 16। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो गैप है ये 2 साल का है, सेम गैप यहाँ पे भी है 2 साल का। सो यू कैन सिंपली सी the gap was similar in the both cases. Also, the other thing you can see, the difference between our age at that time, this part, if you see, this is a 2 year difference. Similarly, here also you can see there is a 2 year of difference, right, guys? So difference of my age and Anshu's age at that time or right now was similar, right? तो अगर मैं यहाँ पे difference इन दोनों का ले लूँ ऐसे, let's say 4x minus y is equal to what? Y minus x, right, guys? समझ रहा नहीं समझ रहा? नहीं समझ रहा तो बता दो भाई। तो यही सेम यहाँ पे भी होगा, दूसरा केस यहाँ पे जैसे मैंने इससे बताया, तो इससे भी आप कर सकते हो। देखो 4x - y इज इक्वल टू y - x, एट दी एंड वही हो रहा है और कुछ नहीं है। लेट्स सी द सॉल्यूशन अगेन, आगे देखते हैं क्या करना है। ओके, तो किसी एक के साथ ही कर लो, बात वही हो रहा है। नाउ इफ यू सॉल्व इट, if we solve it, I will get around 4x plus this x will come here, it will become x is equal to 2y. So my 5x is equal to 2y. So from here, I will get x is equal to 2 by 5, or whatever thing is x upon y is equal to 2 upon 5, ये आएगा। ठीक है, when x was 2, y is equal to 5, ये ऐसा रहेगा कुछ एज। अब मुझे सम पता है, नाउ आई नो द सम ऑफ द देयर एज। ओके, गिव मी अ मोमेंट, अब क्या करना है? इज द आंसर इज 20। अवनीत, अंशु, क्या था आंसर? कैन यू प्लीज चेक, बिकॉज मुझे पता नहीं।
ओके, तो यहाँ पे देखो, ये अब ये दिख रहा है मुझे, ये 2 है, ये 5 है, एंड ऐसा 20 है। ओके, क्या, चलो ठीक है। सो नाउ सिंपली एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे मिल गया। एक्स इधर यू कैन सिंपली व्हाट यू कैन डू, इसको एक्स के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, वाई को एक्स के फॉर्म में लिख लो, और या फिर किसी एक फॉर्म में बना लो, किसी एक में जैसे ही आप बना लोगे इसको, ठीक है, सारे वैल्यूज को, लेट से ये वाला जो है टर्म इससे यूज करके आप बोल दो, यू कैन सिंपली मेक इट वाई इज इक्वल टू 5x/2, ठीक है, ऐसे करके यहाँ कर लो, एंड व्हेन यू सॉल्व इट अहेड तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। लेट्स से यहाँ पे इसकी वैल्यू कर लो, ऐसे छोड़ो मैं ही कर देता हूँ। 4x प्लस द वैल्यू ऑफ y शुड बी व्हाट, 5x/2। Okay, this is nothing but present age of a plus b, and all I also know the present age of a plus b what, 52। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो इट विल नथिंग बट 8, 8 प्लस 5, 13x अपॉन 2 इज इक्वल टू 52। सो 13 कितने था, 13 for 26, 13 30, 13 4 था राइट, 13 4 था 52। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 था 8। तो चलो भाई, x की वैल्यू आ गई 8। पूछा क्या इसने, b की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर b, b की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 5x/2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो x की वैल्यू डाल दो यार वहाँ पे, तो x की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 4 था, तो 5 4 था 20। फ्रॉम हियर द आंसर इज 20, खत्म। 20 कैसे है पता चल गया ना, बिकॉज दे आस्क्ड मी प्रेजेंट एज ऑफ b, प्रेजेंट एज ऑफ b इज y, सो सिंपली द आंसर इज 20। होप इट इज क्लियर, लेट्स गो अहेड। ये हमने कर रहे थे, ये भी कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो देख लेना, जिसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ये हो गया, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। हो गया, ओके चलो हो गया तो ग्रेट। मेथड सेम है, यू कैन वॉच लास्ट सेशन, जिसने नहीं किया विल गेट दिस। ये भी सेम ही है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे अगर कोई डाउट हो, इसमें से किसी में डाउट है, यहाँ डाउट है, यहाँ पे डाउट है किसी को, नहीं है, चलो ये भी हो गया, ग्रेट ग्रेट। ये अगर हो गया तो यार यू आर डूइंग अमेजिंग गाइस, ये अगर बना लियो तो अमेजिंग। इवन दो दोज हु आर वाचिंग और गलती से अगर ज्वाइन कर रहे सेशन, अगर पूछोगे ये कैसे करना है, मेथड बहुत सिमिलर जो हमने लास्ट टाइम की, वही मेथड से करना है। और अगर ये ना है तो मुझे 10 दिन बाद भी आके बोलोगे ये बता दो कैसे करना है, मैं बता दूंगा गाइस। सो ट्राई टिल द टाइम, इजी है, नथिंग न्यू, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन जो हमने किया ऊपर में। ओके, तो होप फ्रॉम हियर हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए। लेट्स गो टू द आर टू द सेशन जो आज करने वाले हैं, हम इस पे चलते हैं। गिव मी मोमेंट टू चेंज द स्लाइड। So from here we are going to start today's part, today's session, special equation. Let's see what is special about special equations. एंड या, सो जब भी जो पूछ रहे थे कहाँ पे देखना है कोर्स, तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा, विल फाइंड दिस कोर्स। ओके, ये वाला कोर्स आपको दिख जाएगा। आप सिंपली जाओ, विजिट prepbit.in, prepbit.in पे जाओ, आपको ये कोर्स मिल जाएगा, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन एनरोल इनटू इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल मेंटर विल गाइड यू विथ 1-to-1, ओके, 1-to-1 मेंटरशिप करे आपके साथ, मतलब एक मीटिंग में बैठे हैं वीकली, और यू कैन से मंथ में 2 बार होता है ऐसे तो you can look for these courses, you can check out our website, okay। apart from this, those who are watching live, उनके लिए ग्रेट न्यूज़ है। सो अगर आप लाइव कंटिन्यू कर रहे हो, सेशन लाइव क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हो मेरे साथ, आई विल क्रिएट अ ग्रुप, ओके, एंड आई विल प्रोवाइड अ ग्रुप मेंटोरशिप, बिकॉज 1-to-1 तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ग्रुप मेंटोरशिप फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनी और रुपी, 1 रुपए भी नहीं दूंगा भाई, ठीक है, 1 रुपये का एक पैसे नहीं दूंगा, मैं फ्री में करूंगा ये सब। एंड मंथली मैं एक सेशन रखूंगा, मेंटोरशिप सेशन, फॉर ओनली दोज मेंबर हु आर वाचिंग, कमिंग और जॉइनिंग मी लाइव। ओके, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो यार ज्वाइन भी कर लो लाइव,
अच्छा ही रहेगा, आपके लिए फायदे में रहोगे। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। आई विल क्रिएट अ ग्रुप ऑन 15th July। वाई सो लेट? इट इज नॉट वेरी लेट, बिकॉज यही एक टाइम एक्चुअल जब आप रियली, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब यही पॉइंट होता है जहाँ पे आप सही से पढ़ना चालू करते हो। ठीक है, दैट्स वाई, एंड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज ऑल्सो, पर्सनल रीजंस ऑल्सो, कुछ मेरे पर्सनल कमिटमेंट है, वो पूरा करना है, तो उसके पहले मैं नहीं ले सकता हूँ। होप इट इज क्लियर। सो लेट्स कम टू द स्पेशल इक्वेशन। व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेशल इक्वेशन गाइस? क्या पता है आपको? चलो, कोई बताना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? टाइप इन चैट बॉक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेशल इक्वेशंस? कोई कुछ नहीं जानता? गजब। देखो, कुछ नहीं है ऐसे स्पेशल इक्वेशन जैसा। यू नो द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लेट्स से लीनियर इक्वेशन, लेट्स से ये वाले एक इक्वेशन बना दिया मैंने, 5x + 3y इज इक्वल टू 210। दिस इज द इक्वेशन। अब ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया बोलना, ये तो यार सिंपल इक्वेशन, इसमें क्या स्पेशल है? सो द स्पेशल इज, एज आई टोल्ड यू, कि स्पेशल इक्वेशन नाम है, इट डजंट मीन कि दिस इक्वेशन शुड बी स्पेशल, राइट? बट हियर you can see you have two variables. Jagvatman, you got the point. Here you can see there is two variables, x and y, and I have given you only one equation. So if you have gone through my first session, I told you to find a unique value. Whenever you want to find unique value, okay, whenever you have to find unique value, you must need like a number of variables. If the number of variable is one or two, you can say two variables, you must need two equation to find a unique value. But here I have given you only one equation and asked you to find all the possibilities, all in a, like a possible numbers. So how you could find? That is special in this इक्वेशन। मतलब आपको मैंने एक नंबर दे, एक इक्वेशन दे दिया, एंड मैंने आपको बोला कि चलो अब जितने भी इसके वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज, एक्स एंड वाई के पॉसिबल वैल्यूज, चलो अब बताना चालू करो। ठीक है, यही स्पेशल है, दैट्स व्हाई वी से स्पेशल इक्वेशन। बाकी कुछ नया नहीं है। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज अलग, अनदर थिंग। ओके, so this is the only thing the special about this equation and nothing else. And you can see the lots of questions reflected in the past years paper. Even though in last year also, in 2023, we have one question from the special equation in first lot. And if you guys are those who have attempted a first lot paper, you might find one or two question. Apart from this, I have come up with the questions, and ये क्वेश्चन है मैं मेरे नहीं है, ये गाइस मैंने ओपन पोर्टल से मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बना के ला रहा हूँ खुद से। तो कोई अगर क्लेम करे कि आपका क्वेश्चन है, तो थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा उन्हें। थैंक यू फॉर द पीपल दोज आर मेकिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। की क्वेश्चंस मेरे नहीं है, मैं इधर कैट पेपर्स एंड अदर सोर्सेज जो भी है फ्री अवेलेबल इन मार्केट, मैं उनसे ही क्वेश्चंस लेके आता। यू कैन सी द क्वेश्चंस लाइक दिस, हाउ मेनी पार्ट्स लाइक डिविजिबल। ऐसे देख के तो लग रहा ना कि नंबर सिस्टम आ गया, बट नहीं, नंबर सिस्टम नहीं है, स्पेशल इक्वेशन ही है। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, ये देख के लगा यार ये ज्योमेट्री कहाँ से आ गया। ज्योमेट्री नहीं है, ये भी स्पेशल इक्वेशन का ही, मतलब इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा गाइस, ज्योमेट्री नहीं आया यहाँ पे। यहाँ भी देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ गए, बट इट इज नॉट अ ज्योमेट्री। यू कैन सी हियर, यू कुछ कोई बोलेंगे यार ये क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ मंथ पूछ रहा है, ये एलआर कहाँ से आ गया? तो एलआर नहीं है, स्पेशल इक्वेशन ही है। तो these are the questions we are going to solve right now. Let's come to the first one now. अब होता क्या है ना, अब इसको सॉल्व करना है। लेट्स इसी क्वेश्चन से चालू करते हैं, इस क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो सी हियर यार, ऐसा हो रहा है कि मैं पहले बोल ले रहा हूँ और स्लाइड बाद में शो हो रही है, मूव हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो बता सकते हो भाई। ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए भी, सिर्फ नेटवर्क स्विच कर सकता हूँ बस। सो सी हियर, अगर मैंने पूछा आपको, नो, ओके देन ग्रेट, ओके देन ग्रेट। सो इफ आई आस्क यू
लेट्स से, पहले चलो बेसिक पे आते हैं। डू यू नो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? यू गाइस नो होल नंबर? चलो होल नंबर छोड़ो, पहले इंटीजर्स बताओ। इंटीजर्स किसे कहते हैं हम? एनीवन? देखो इंटीजर्स कैसे कहते हैं, जिस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स रहते हैं उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन पे तो बहुत नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो -1, -2, -3, -4। इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स है नंबर लाइन पे, इस सारों को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। राइट गाइस? सो वी call integers to these numbers 0, 1, 2, 3, 4 minus. If someone asks you that 1.5 is an integer or not, so no, I would say this is not an integer. ठीक है, this is a fractional value, not an integer. So इसे integer आप नहीं count करोगे, this is a fractional value. Okay guys, hope it is clear. Same integers में भी कैसे है, देखो यहाँ पे these are the integers like you can see here, the 1, 2, 3, 4 and there is so on till the infinite. These are the integers, कैसे दिख रही है? These are the positive in nature. So we say these integers to a positive integers. Okay, we say these integers to positive integers. Similarly, here you can see these are the integers which are negative in nature. माइनस साइन आ गया उनके आगे तो नेगेटिव है, सो वी कॉल these integers नेगेटिव integers, राइट? ये हो गया integers. सिमिलरली, अब ये मत बोलना कि यार नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ गाइस, बाकी मुझे नंबर सिस्टम तो अच्छा नहीं आता है। नाउ व्हेन आई आस्क यू होल नंबर, ओके, ऑल्सो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे हम एक और नाम दे के रखे, स्पेशल नेम, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दीज आर नंबर्स वी कॉल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अगर कोई पूछ ले क्या है तो बोल देना 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ यू कैन सी मैंने जीरो मेंशन नहीं किया। अगर मैं यहाँ जीरो मेंशन कर दूं, इफ आई मेंशन जीरो, so it will become whole number. If I mention zero here, it will become whole number. Got the point guys? Whole number और natural numbers में क्या difference है? Okay, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यही था यार, उसमें और कुछ नहीं था। ऑल्सो हाँ, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ओके, इफ आई आस्क यू से यू अबाउट नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव किसे कहते हैं? तो नॉन नेगेटिव में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? सारे नेगेटिव छोड़ के जो भी बचेगा नॉन नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली। सो नॉन नेगेटिव में क्या क्या आ जाएगा? जीरो से लेके पूरे जितने भी है नंबर्स आपके, दीज आर द वैल्यू वी से नॉन नेगेटिव। इफ आई कॉल यू नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, इन दिस सिनेरियो, पॉजिटिव जितने भी उसको छोड़ दो, पॉजिटिव नंबर कौन से है? ये इंटीजर है पॉजिटिव, इसे छोड़ के जितने भी वैल्यूज है वो सारे आ जाएंगे नॉन पॉजिटिव में, लाइक दैट इज 0, -1, -2, -3। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस सिनेरियो, यहाँ भी जीरो आ रहा है, यहाँ भी जीरो आ रहा है। कब? जब ये नॉन नेगेटिव की बात हो रही है, जब नॉन पॉजिटिव। वाई? बिकॉज जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट्स इट। देन बाकी प्राइम रैम तो पता ही होगा यार, प्राइम किसे कहते हो, वो सब पता ही है तो अच्छी बात है। नहीं पता तो आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे हम। ना हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 5y = 109। Now I have to solve these. In the first, the question they are asking me, number of integral solution. Integral is nothing but integer solution की बात हो रही है, तो ऐसा मत समझना इंटीग्रल वो इंटीग्रेशन आ गया क्या। ठीक है, अगर आप साइंस वाले तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, तो नहीं, ये नहीं करना है। इंटीग्रल वैल्यू मीन्स इंटीजर वैल्यू, दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। So
इफ दे आर आस्किंग इंटीजर सॉल्यूशन, दे हैवंट मेंशन अबाउट अ स्पेसिफिक इंटीजर। लाइक यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा है तो आपको जितने भी इंटीजर सॉल्यूशन है वो बताने हैं। सो डू यू वांट टू ट्राई, और मैं पहले आ जाऊँ करके बताऊँ? डू लेट मी नो, ट्राई करना है या फिर मैं सीधा बताऊँ? हैव अ ट्राई, देखते हैं आपको कितना दिमाग यूज कर पा रहे हो। लेट्स चेक योर करंट पोजीशन, कहाँ पे हो आप और कितना आप यूज कर पा रहे हो अपने लॉजिक्स। लेट्स सी, ट्राई, गिविंग यू 2 minutes, लेट्स ट्राई। गौरी 7 इंटीग्रल सॉल्यूशन, सिर्फ 7 आएंगे? आर यू श्योर? अदर्स? अच्छा, पॉजिटिव, यू आर मेंशनिंग ओनली पॉजिटिव। फर्स्ट का आंसर करो, फर्स्ट। इनफाइनाइट। ओके, तो अवनीत इनफाइनाइट कह रही है, गौरी, गौरी ने पॉजिटिव का आंसर दे दिया। ओके, इनफाइनाइट होगा। ओके, चलो, लेट्स सी, लेट्स सी। अदर्स आल्सो प्लीज पार्टिसिपेट सो दैट आई नो लाइक वेयर यू आर। अगर आप पीछे छूट जाओगे तो यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप साथ में चलना चाहिए, अगर आप सेशन लाइव करें तो यू, आई शुड नो कि आप कहाँ पे हो, कहाँ की क्या आपकी लेवल है, सो दैट मैं वहां तक जाके आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। चलो, देखो यहाँ पे 3x सॉरी 3x + 5y = 109। अगर ये मेरा इक्वेशन है, सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड कैसे करूंगा? द कंडीशन इज, पॉजिटिव तो 8 आ रहा है, पॉजिटिव 8 आ रहे हैं। लेट्स सी। सबके अलग नंबर, किसी का 6 आ रहा है, 7, 8, सब 9 भी बोल दो, 10 भी बोल दो, अब बाकी के बचे 1 2 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। सो द इक्वेशन इज 3x + 5y = 109। सबसे पहले बेसिक थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द फर्स्ट वैल्यू। सो यहाँ पे टारगेट हमारा यही रहेगा, यू हैव टू फाइंड योर इनिशियल वैल्यू, एनी वन वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू ढूंढ लो, दैट इज इनिशियल वैल्यू, कोई भी एक ढूंढ लो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक इनिशियल वैल्यू मैं ढूंढना चाहूंगा सबसे पहले तो। सो हाउ यू कुड फाइंड दिस? सिंपली by arranging this equation in such a manner so that you will get your values easily. So I will try to arrange this in this way, like a 3x should be equal to 109 minus, इसको यहाँ भेज दो, 5y। So x is nothing but 109 minus 5y upon 3। अब ऐसे तो मुझे नंबर दिखेगा नहीं कि ये 109/5y से हो रहा है या नहीं हो रहा। व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली अरेंज इन सच ए मैनर कि यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाए इजीली। लेट्स से आई नो, इफ आई डिवाइड 109/3, तो ये पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, 118 तक डिवाइड हो जाएगा। आई कुड इजीली डिवाइड 118, सॉरी 108, माय बैड, 3 3 9, या, सो ये 108 तक डिवाइड हो जाएगा। राइट, फ्रॉम हियर ऑल्सो आई विल डिवाइड, एबल टू डिवाइड 3y, प्लस जो बचा उसको मैं अलग लिख रहा हूँ, जो बचा क्या है, 1 - 2y/3। ये समझा कैसे ब्रेक डाउन किया मैंने? दिस इज नथिंग बट, ऐसे देख लो यार, ये मैंने ये किया है, 108 + 1 -3y - 2y/3। तो मैंने ये तीन, जो 3 3 के मल्टीपल्स उनको एक तरफ कर दिया। ठीक है, 3 3 के मल्टीपल्स को एक तरफ कर दिया। सो आई लेफ्ट विद दिस पार्ट, लाइक 1 - 2y/3। ठीक है, व्हेन आई डिवाइड दिस वन, अगर मैं इसे डिवाइड कर लूँ तो ये मेरा आ जाएगा 3 3 9, 3 6 18 माइनस वाई। ये सॉल्व करने का दिया आ गया, प्लस ये पार्ट एज इट इज है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, यहाँ से मुझे मिल जाएगी मेरी फर्स्ट वैल्यू। नाउ यू कैन सी, आई हैव टू मेक दिस वैल्यू टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। इफ आई हैव टू मेक दिस वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3, सो हाउ कुड आई मेक 1 - 2y मल्टीपल ऑफ 3? कैसे बनाऊंगा? I would simply put a value of y should be either 1, 1 से नहीं हो रहा है, अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूं, क्या पॉसिबल है वो बनाना? नहीं। तो y की वैल्यू 2 रख के देखो, 2 इज इट, 2 इज पॉसिबल, यस 2 इज पॉसिबल। व्हेन आई पुट 1 - 2 into in the place of y 2, I will get this value like 1 -
4/3, which is nothing but -3/3. Right, guys? So I will get from here value -1. So my first value और the value for y is 2. समझा y की वैल्यू कैसे निकाला मैंने? बताओ भाई, ये सब पे भी दिक्कत आती है लोगों को, इसलिए मैं एकदम प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ y जो मुझे मिला ये 2 मिला। ओके, एंड ये 2 मिल गया। सो व्हेन आई पुट y इक्वल टू 2, I will get from here, if I put y equal to 2, I will get -1 from here. So my equation is nothing but, okay, जब मैं यहाँ 2 पुट करूँ तो यहाँ भी मैं 2 पुट कर दूंगा. So it will going to be a 34 माइनस फ्रॉम हियर -1 मिल रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा 33. सो दिस इज द माई वैल्यू, दैट इज 33. बस इतना निकालना है मुझे. अब देखो, अब ध्यान दो. अब मुझे पता चल गया कि यार ये तो निकल गया मेरा 33 एंड 2. नाउ इस केस में होता क्या है ना, कि बहुत बढ़िया है कि आप देखो, जब मैं यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर पुट करूंगा, लेट्स से आई विल पुट हियर अ 4. ओके, अगर मैं 4 करूँ, 4 वैसे है नहीं, मैं अगर यहाँ पे 5 पुट कर दूं, इफ आई पुट द वैल्यू 5, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू होंगी ये इंक्रीज होंगी और डिक्रीज होगी. देर गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, डू लेट मी नो. ये बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा, राइट गौरी? डिक्रीज होगा. सो इट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो डिक्रीज बाय व्हाट? डिक्रीज बाय व्हाट, कैसे डिक्रीज होगा? तो ये तो समझ में आ गया कि मुझे अगर मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ वैल्यू को, तो यहाँ पे डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये क्लियर है तो अब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आपको निकालते नहीं बैठना है. नेक्स्ट वैल्यू सिंपली अपने आप आ जाएंगी. यू कैन सी, जो यहाँ पे ये जो 3 है ना, इससे y की वैल्यू बढ़ेंगी, और ये जो 5 दिख रहा है, इससे x की वैल्यू बढ़ेंगी. इट मीन्स जो y की वैल्यू है उसमें +3 होते जाएगा. ठीक है, जो y की वैल्यू उसमें क्या हो जाएंगी, +3. एंड बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैसे डिक्रीज होगा? वो डिक्रीज होगा 5 से. इट गो डिक्रीज बाय 5. तो जैसे यहाँ पे +3 होगा, y डिक्रीज होगा 5 से. यस दीदी, ग्रेट ग्रेट. चलो समझ में आ रहा है, समझ अच्छा लग रहा है मुझे आज. लोगों को समझ में तो आ रहा है कुछ. ओके, सिमिलरली दिस विल गो लॉन्ग वे, जहां तक जाना है, टिल द टाइम जीरो आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, सेम सेम हियर नेगेटिव आएगा. सो इफ यू सी हियर, एक पोजीशन आएगा, ये तो पॉजिटिव आते जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट जा रहा है. इन सम पोजीशन माइट बी आई विल गेट अ जीरो, मे बी नॉट, देर इज नॉट पॉसिबिलिटी, जीरो तो नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है. तो यहाँ पे देखो, ये धीरे धीरे नेगेटिव की ओर जा रहा है, ये अग्रसर होते जा रहा है अपने बर्बादी की ओर. दिख रहा है, ये नेगेटिव इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है ये. होप इट इज क्लियर. एक पॉजिटिव इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है. ये बढ़ते जाएगा, ये इसका कोई रोक नहीं है, यहाँ पे लगाम नहीं लगा सकते हम. वन इज गोइंग टू पॉजिटिव इन्फाइनाइट एंड सेकंड वन इज गोइंग टू नेगेटिव इन्फाइनाइट. अरे यार, नेगेटिव इन्फाइनाइट. होप दैट पार्ट इज क्लियर. सो फॉर द आंसर, द सॉल्यूट, तो फर्स्ट का आंसर सिंपल है. नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इनफाइनाइट. आई कांट फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव. मैंने नॉन नेगेटिव थोड़ी देर पहले ही बताया था. लेट्स कम फॉर सेकंड वन. ये तो हो गया. सेकंड क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव. ना पॉजिटिव, हाउ कुड यू फाइंड द पॉजिटिव वन? शुड यू हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज पॉजिटिव? अब देखो, पॉजिटिव मुझे निकालना है, तो मैं इसे तो चेक नहीं करूंगा ना भाई. मैं अगर बकलोल होगा तभी मैं इसे जाके चेक करूंगा, मैं बहुत बड़ा बकलोल हूँ अगर. ओके, व्हाट वी से, और आई एम वेरी मच एक वेरी फूल, सबसे गधा बच्चा हूँ अगर मैं, जो मैं था पहले. ठीक है, तब मैं इसको जाके चेक करूंगा ना, राइट? बट बट मुझे ये चेक नहीं करना, क्योंकि ये तो नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, ये तो पॉजिटिव जा रहा है. तो यहाँ तो मुझे चेक ही नहीं करना है, मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा, दिस वन. यू कैन सी वाई, सॉरी एक्स, यू कैन सी एक्स. इट इज गोइंग टूवर्ड नेगेटिव इनफाइनाइट, मतलब ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है. सो इफ आई चेक हियर कि भाई ये बता दो तुम जीरो कब आओगे, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा कि यस, कहाँ तक मुझे जाना है, राइट? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
बोल दो ना जरा, मतलब टाइप कर दो ना जरा गाइस, बोलो मत, टाइप कर दो। समझ लो यार, एक बार का है, बाद में ये दुख नहीं रहेगा, हर जगह पूछता है इसलिए बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है। एलआरडी में भी इसका यूज है इसलिए। चलो। तो अगर ये क्लियर है कि नेगेटिव में मुझे एक्स को ही चेक करना है, तो व्हाट आई कैन सिंपली डू, माई ट्राइज, आई नो माई इनिशियल वैल्यू इज 33, right? My first value would be 33. So if I say 33, let's choose a green color. So it is 33 minus, ये कितने से डिक्रीज हो रहा है, 5 से डिक्रीज हो रहा है, it is decreasing by 5. So I will simply say decreasing by 5k, k for any value, no matter कितना है मुझे, I just have to find the biggest value, और सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसे फाइंड करना है, which is equal to 0. जीरो क्यों दिया मैंने, क्योंकि मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल बनाना है, तो मैं जीरो के पास जाऊंगा। आई विल ट्राई टू कीप इट एज क्लोज एज जीरो, मैं जीरो के पास जाना है। आई नो कि ये जीरो के पास नहीं जाएगा, सॉल्व नहीं होगा पूरा, बट फिर भी मुझे वहां तक जाना है। फ्रॉम हियर आई विल सिंपली गेट, बट आई विल गेट हियर दैट 5k इज इक्वल टू 33। मैंने 5k को इधर भेज दिया, 33 मिल गया। सो k फ्रॉम हियर इज नथिंग बट 33 डिवाइड बाय 5। इफ यू divide this like this value, सो कंप्लीट डिवीजन कहाँ पे हो रहा है, 30 को ये डिवाइड कर पाएंगा 5, राइट? मतलब यहाँ तक तो उसके पक्का पक्का वैल्यूज आ रहे हैं। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द 6, लाइक अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। सो यू जस्ट हैव टू चेक दिस 6, सो यू नो द वैल्यू फॉर दिस इज 6। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। अब किसका साइज 7 आ रहा था भाई, ये बता दो मेरे मुझे। रुक जा मैं चेक कर लूँ। लेट मी चेक द आंसर की ऑल्सो आया। आज मैंने आंसर की लेके बैठा हूँ कहीं पे। शिट मैन, आंसर की तो मैंने ऊपर ही नहीं किया कहीं पे भी। चलो यार, आंसर तो नहीं है मेरे पास भी, लेट इट बी। तो 6 आ रहा किसी का, कि 7 कैसे आया? अब देखो इसका आंसर 6 भी नहीं है। अगर जो 6 मार्क करके आएंगे उनके लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ तो मुझे पता था, उम्मीद आपका अगर 6 आया तो फंस जाओगे। देखो 6 तो तब तक है ना जब ये माइनस कर दिया। व्हाट अबाउट दिस वन, इसको क्यों भूल रहा हो, इसको क्यों भूल रहा हो? इसे तो हमने काउंट नहीं किया ना। काउंट दिस वन ऑल्सो, +1, सो आंसर फॉर दिस इज नॉट 6, दिस 7। गॉट इट? अरे हाँ, 7 आ रहा है, वो तो मैं उसे बता रहा हूँ कि क्या उसने मिस किया है, आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है, उसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? 8? आर यू श्योर 8 इज द आंसर? भाई 8 कैसे करोगे? सी, नॉन नेगेटिव की मीन्स व्हाट, नॉन नेगेटिव मीन्स इफ यू आर यूजिंग अ ट्रिक और फॉर्मूला देन यू कैन से दैट 8, मतलब आपने अगर वो पढ़ के आए हो कहीं से कि नॉन नेगेटिव है तो +1 कर देना। यही वही वाला है ना, +1 वाला है क्या? तो देखो ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, एग्री। फॉर्मूला इज नॉट लाइक इनकरेक्ट, बट उसमें भी रूल्स होते हैं, थोड़े ट्रिक्स में भी रूल्स होते हैं जो फॉलो करना पड़ता। बट ये जीरो तो बन ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे हम जीरो बना ही नहीं रहे, बन ही नहीं पाएगा। यू कैन सी देर इज नो सॉल्यूशन इन विच एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एनीवेयर। ये तो पॉजिटिव में ही खत्म हो जा रहा, तो मैं नेगेटिव में तो जाऊंगा ही नहीं। तो मेरी वैल्यू तो यहाँ भी कितनी होगी, 7। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो 7। होप इट इज क्लियर नाउ। गॉट इट? कर लो, आज आज इसे खत्म करना है, कल से क्वाड्रेटिक चालू करना है, माय फेवरेट टॉपिक। क्वाड्रेटिक में मुझे मजा आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदे क्वेश्चन वहीं पे से आते, तो मुझे अच्छा लगता है वो देख के। ओके, अगर ये क्लियर है तो ये सॉल्व करके बताओ। अगर वो क्लियर है तो ये सॉल्व करके बताओ, यहाँ आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यू हैव अ 2 मिनट्स, लेट्स से 2, हाँ 2 मिनट काफी है यार, 3 मिनट ले लो चलो। 3 मिनट्स, सॉलिड।
तो या गाइस, लॉट्स ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। सिंपल था। द फर्स्ट वन इज आस्किंग फॉर, लेट्स से इफ आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, कैसे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या आंसर आएगा इसका? ओके, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, चलो बढ़िया है। चलिए तो क्लियर है ना? अब देखते ना, अभी अब याद रख लो, अब ये चीज दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो। इफ देर इज a इक्वेशन इन दिस वे, लाइक 5x प्लस वाई और समथिंग, लाइक कुछ भी हो, प्लस में अगर यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में है, उसका हमेशा इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। दैट्स इट। तो चेंज कब होगा? यू मस्ट आस्क कि ओके दिस इज इनफाइनाइट, सो इज इट, ये इसमें भी एप्लीकेबल है? सो नो, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। हियर यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यू। ओके, लाइक यहाँ पे जैसे हमने किए थे कैलकुलेट, उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट द पॉइंट गाइस? सो वेन एवर यू सी द वैल्यू इन द पॉजिटिव, उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। नेगेटिव में अगर है तो भाई उसको आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। दैट्स इट। तो होप इट इज क्लियर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कोई ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं ट्रिक, तो मैं क्या बताऊँ। है वैसे ट्रिक तो है कुछ, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, तो इसको कुछ करना है, एलसीएम से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी बहुत से नंबर्स है, फिर इसमें +1 कर दो, इसमें -1 कर दो, बट मेरे दिमाग में बैठता नहीं है। तो अगर आपको सीखना है तो आई वुड रिकमेंड यू कैन लुक फॉर सम अदर एडुकेटर जिन्होंने सिखा दिया हो। एटलीस्ट वो देख के आ जाओ वहां से, अगर आपको सीखना है तो। बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप प्रेशर में रहोगे, वेन यू आर इन, लाइक कैट दे रहे हो आप, आपके सामने स्क्रीन है और आप कैट दे रहे हो ना, ये ट्रिक ट्रिक जो रहते हैं ना, मतलब वो ट्रिक, ट्रिक इन अ सेंस, दोज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज और दिस थिंग, ये याद नहीं आता वहाँ। बेसिक ही याद काम आता है, बेसिक लॉजिक। बेसिक लॉजिक से ही आप कर सकते हो। दैट्स वाई जो मेरे ट्रिक रहते हैं वो लॉजिकल ज्यादा है, मतलब ऐसा कुछ रटने वाला नहीं है कि आपको याद करके बैठना है। ठीक है, तो मैं जो भी ट्रिक्स बताऊंगा वो लॉजिकल वाले रहेंगे, ऐसे कि आपको क्वेश्चन देके समझ में आ जाए, आपको यहाँ पे सिंपल सा ये एक्स की जगह ये पुट करना है, लाइक यू हैव सीन इन माय लास्ट सेशन। ओके, सो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, आई होप यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएंगी 7, एंड द वैल्यू फॉर दिस वन इज 9। ओके, वैल्यू फॉर दिस इज 9, एंड हियर दे हैव आस्क्ड यू x y are positive integers, then find the value of minimum value. So minimum value for this is 40। अब ये कैसे निकालोगे? तो यार x एंड y की मिनिमम वैल्यू निकाल दो, उनको ऐड कर दो। ठीक है, अब मिनिमम कैसे निकालेंगे? तो सी हियर, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलेंगे यार इसने करवाया नहीं। लेट्स सी। सो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम हियर, through the equation I will get 5x plus 6y is equal to 240। If I solve it here, what I get? Simply the first value for x and y। तो आप लोग ने सॉल्व किया, ये तो बता दो भाई क्या निकला था फर्स्ट वैल्यू एक्स और वाई का। लेट्स चेक कितने लोग ने किया है। कुछ तो आया होगा जिंदा, क्यों भी नहीं आया। एक्स इज 42, वाई इज 5। ओके, ग्रेट। तो फ्रॉम हियर इफ यू कैन सी, एक्स इज 42, वाई इज 5। अब यहाँ पे हो गया ये 5, ये बढ़ते जाएगा। किससे बढ़ेगा ये? एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर कि ये बढ़ेगा 5 से। दिस विल गोइंग टू इंक्रीज बाय 5। क्यों? बिकॉज 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड एक्स जो बढ़ेगा वो कोफिशिएंट ऑफ वाई से बढ़ेगा। ओके, इधर इट वाज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, बट इन इस केस में क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, इट मीन्स दिस इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 5। यहाँ पे माइनस, सॉरी, बाय 6 नॉट 5। ये किससे होगा? ये -6 होगा। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू जो है इसका 10 है, एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा 6 कम कर दो तो ये हो जाएगा 36। राइट, इन सिमिलर वे आप जाते जाओगे, नीचे में वैल्यूज आएंगे कुछ अप टू द वैल्यू, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द जीरो इज ऑल्सो वन ऑफ द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जीरो भी आएगा। तो जो भी है वो देख लो। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, ये तो आप निकाल दोगे, आई नो, ये तो वैल्यू में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फॉर एक्स प्लस वाई, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू फॉर एक्स?
प्लस वाई। तो इसका जो आंसर था सिंपल है, 41 था आई थिंक। तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कहाँ क्या करोगे, आप इसको लेके जाओगे आगे आगे बढ़ा के, इनसे लेके जाओगे आप, छोटा छोटा करोगे। सो यू विल गो, व्हेन यू गो हियर, इंक्रीज करते वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो माइनस तो हो ही जाएगा, लेट्स इंक्रीज द वैल्यू। सो फ्रॉम हियर यू विल गो, लेट्स से कितना हो सकता है, क्लोजेस्ट वैल्यू शुड बी अराउंड 10, 30, 50, एंड दिस विल गोइंग टू अराउंड 36, 36, दिस 30, देन नेक्स्ट वन इज, चलिए यार मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, छोटा सा तो है ही। 30, then this will nothing but 24, then this is going to be a 18, then this is going to be a 12, then 6, then 0। ठीक है, यहाँ पे ये 10 y से बढ़ रहा है तो 15, 20, 25, and this should be a 30, not 20, this should be a 30, this should be a 35, this should be a 40। now you can see here, अब मैं इसके आगे अगर जाऊंगा, अगर मैं इसको 45 भी कर दूं, और इसे मैं अगर -6 भी कर दूं, इनकी जो वैल्यू है, ओके सॉरी, सॉरी यहाँ देखो, ये पॉइंट मैं भूल गया। इट इज मेंशन फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैं नीचे तो जाऊंगा ही नहीं, नीचे जाऊंगा तो और छोटा वैल्यू मिल जाएगा, बहुत छोटा। एनीथिंग पॉसिबल इसके नीचे गया तो मुझे यहाँ तक ही देखना है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये भी नहीं देखना है, इग्नोर दिस ऑल्सो, आई हैव टू सी ओनली दिस पार्ट। सो 6 + 35 वॉज नथिंग बट 41। यहाँ पे देखोगे तो ये आ रहा है 42। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 47। सो यू कैन सिंपली सी द मिनिमम वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई इज व्हाट, 41। कब, जब ये पॉजिटिव है। अगर मुझे पॉजिटिव में मेंशन नहीं रहता तो ये बहुत लंबा जाता, और वैल्यू इसकी मतलब आप नहीं निकाल पाते। ठीक है, और भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता। सो हियर वेल आंसर फॉर दिस वन इज 41। मैक्सिमम पूछ रहा है, 47 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है पॉजिटिव में, दैट्स इट, द 47 इज आंसर। होप इट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो आगे जाते हैं, ये कर लेना, होमवर्क है, सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे। ना हियर ऑल्सो मैं समझाया था इसको कैसे करना है। द प्राइस ऑफ द पेंसिल इज 6 रुपीज एंड इरेजर इज 8 रुपीज। राम स्पेंड 248 इन परचेसिंग दीज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब A1 का आर्टिकल नहीं है भाई, इसे भी आर्टिकल्स ही कहते हैं। ठीक है, पेंसिल इरेजर जो लिया है इज ऑल्सो वी से आर्टिकल्स। सो राम परचेज 6 पेंसिल, सॉरी अ पेंसिल कॉस्टिंग 6 रुपीज। ओके, वी डोंट नो कितने पेंसिल लिया है। देन सिमिलरली वी हैव इरेजर, 8 रुपीज का एक इरेजर मिलता है, पेंसिल से महंगा इरेजर है, गजब। इट विल कॉस्टिंग हिम अराउंड 248। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पेंसिल्स इरेजर्स राम कुड बाय। कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है, क्या पूछ रहा है। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, पेंसिल इरेजर दोनों रहना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन में दोनों रहना चाहिए, राइट। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, सिंपल नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ये निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझा guys क्या कह रहा है ये, पेपर में ऐसे ही आएगा अगर आया तो। कॉम्बिनेशन पूछ लिया तो ये मत सोचना पीएनसी लग गया यहाँ पे, कॉम्बिनेशन देख के बोलना पीएनसी आ गया, नो पीएनसी नहीं है। ठीक है, ये लीनियर का स्पेशल इक्वेशन है। सिमिलरली हाउ मेनी मैक्स आर्टिकल्स राम कुड बाय। मैक्स पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है वो, P+E पूछ रहा है। P+E मतलब चलो इसे एक्स वाई में लिख लो, अगर P नहीं समझ रहा तो let's write in a x y way. So he is asking just value for x y, and that could be a maximum value for x plus y, right? So I hope you can easily find these, right, guys? And if you can find it easily, let's go ahead। ये सॉल्व करना मतलब मैं करवा दूंगा वैसे तो नेक्स्ट सेशन में, बट अभी के लिए होमवर्क ले।
Similarly, this was a similar question. You have to make the same like format. लिख दो उसको और इसमें भी सॉल्व करना है, सेम है, नथिंग न्यू. नाउ सी हियर. बस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, पहले आप सॉल्व करके आओ, फिर देखेंगे, बिकॉज बेसिक इज इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेसिक, उससे ज्यादा कुछ है नहीं. बाकी काम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ही वैसे भी. नाउ सी, हाउ मेनी वेज 241 कैन बी डिवाइडेड इनटू टू नॉन नेगेटिव parts, two non-negative parts, such that one part is divisible by 5 and remaining part is divisible by 9. Let's say I divided it in a way x plus y में मैंने इसको divide कर दिया 241 को. Okay, x plus y, let's not x plus y, let's say a and b. I divided it in a part of a and b in a two parts. Okay, and a is divisible by 5. A is divisible by 5. So I could easily say a upon 5 is nothing but x. Maybe x हो सकता है ना. And simply I would say b upon 6, sorry, not 6, 9. B upon 9 is divisible of y. Right, guys? यहाँ तक समझ रहा है? So from here I will get a is equal to 5x. From here I will get b is equal to 9y. तो मुझे क्या करना है? I have to just check 5x plus 9y is equal to 241. Now how many such like how many way we can divide this? तो मुझे x और y की वैल्यू निकालना है, that's it. Ways निकालना है, number of solution, and because it is mentioned, we have to find non-negative parts. We don't have to find negative, we have to find non-negative. It means 0, 1, 2, 3, these are the positive. माइनस में जाना नहीं है, माइनस को कंसिडर नहीं करना है. ओके. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार क्या बच्चे से पढ़ा रही है, ये क्यों बताएं. तो ठीक है, बड़े लोगों के लिए देख लो डायरेक्टली. बिकॉज इट इज मेंशन इट इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस it is multiple of 5, so simply you can take 5x. And because it is mentioned it is divisible by 9, so simply you can take 9y. बिकॉज अगर वो डिविजिबल है मतलब मल्टीपल तो होगा ना भाई, तभी वो डिवाइड हो पा रहा है. राइट, दैट्स इट. सिंपली एक लाइन में हो जाएगा. इसे सॉल्व कर लो. वही पूछा है हाउ मेनी वेज, तो वो निकाल के बता दो उसे. देखते कितने लोग कर पाते हैं इसे. आई विल शेयर विथ यू गाइज, ये अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूँ. एंड चैनल पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना. हियर ऑल्सो, इन acute angle triangle in which the measure of all the angles in the degree are natural numbers. Okay, so you can see in a degree, the measure of all the angles are in natural numbers. Natural numbers note करते जाना, important है. नेगेटिव मत चेक कर लेना. 14 times one angle equal to 19 times of the other angle. Okay, 14 times of one angle is 19 times of other angles. The measure of largest possible angle in the triangle is, okay, let's say एक acute angle triangle है. ठीक है. एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. आई होप यू गाइज नो दिस. अब यहाँ बोल क्या रहा है, बिकॉज एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, एंड 14 टाइम्स वन एंगल इक्वल टू 19 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द अदर एंगल. ऐसा उसने बताया, मतलब एक एंगल जो है वो 14 टाइम्स है दूसरे एंगल का. ओके, 14 टाइम्स ऑफ 19 टाइम्स ऑफ, ओके यार ऐसे लिखो चलो. 14 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 19 टाइम्स ऑफ y. दिस इज व्हाट वो बोलने की कोशिश कर रहा है. 14 टाइम्स ऑफ वन एंगल इक्वल्स 19 टाइम्स ऑफ, ओके सॉरी सॉरी, माय बैड. मेरी गलती है, मैं गलत कर रहा हूँ. चलो यहाँ करवा देते एक बार. अगर ये x है और ये y है, ये क्या होगा. अभी मैंने बताया कि टोटल सम कितना है 180. दिस मस्ट बी इक्वल टू नथिंग बट 180 माइनस x माइनस वाई. यही होगा. ये क्या कह रहा है ये, कि इनका जो एक एंगल है ना, कोई सा तो एक एंगल, वी डोंट नो विच वन. So one angle is, that is 4, which is 14 times,
सॉफ यार क्या कह रहा है ये, मैं भूल गया मैं क्या समझा रहा था। ओके, so 14 times one angle, like 14 times of x is equal to 19 times of other angles. Other angles means what? The other angles, like एक y हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया? 80 minus x minus y. And from here I will nothing get. गलत क्वेश्चन लेके आया क्या मैं? गिव मी मोमेंट, लेट्स मी चेक नेक्स्ट वन क्या कह रहा है. तो वन ऑफ द अदर एंगल्स है ना. ओके, पहले ही सही था, मैं करवा रहा. आई थॉट मैंने ऐसे रीड कर लिया उसको कि 14 टाइम्स जो वन एंगल है ना, वो बाकी बाकी के 19 टाइम्स के इक्वल है. मैंने गलत रीड किया, माय बैड. ओके, ये तो फिर भी क्लियर रहना चाहिए. 80 minus x minus y. So I don't know which angle is 14 times and which angle is 19 times, but let it be. Let's see here. So 14 times of one angle, that is 14x, is equals to 19 times of other angle, one of the other angles. So one of the other angles, let's say 19 times of y. So from here you will get 14x जो है, ये वैल्यू जो बन जाएंगे आपकी 14x बन जाएंगे. ओके, और ये वैल्यू अगर x है तो ये यहाँ से मतलब x में कन्वर्ट कर लो, लेट्स से 19 y में कन्वर्ट कर लो, मतलब 19 अपॉन 14. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू फॉर x इज दिस. ओके, एंड द थर्ड एंगल, ये मत लो अभी के लिए, लेट्स चेंज दिस एंड इसको z कर लो. लेट्स मेक इट z. ओके, and if you convert these, if you sum all these value, x plus y plus z is equal to 180 degree. Now x plus y, y की जगह सॉरी, x को y में कन्वर्ट कर दो. So x is nothing but 19y upon 14 plus y plus z is equal to 180 degree. Now sum this, इसे अरेंज कर लो. अरेंज करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको y और z में एक इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, विच इज इक्वल टू 180 और जो भी होगा. इस इक्वेशन की क्या पूछा उसने? मेजर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल इन द ट्रायंगल. तो आपको वहां से वैल्यू निकालना है और उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो कर पाओगे ये? बताओ भाई, कर लोगे ये? ट्राई कर लेना, मतलब वी विल लाइक डिस्कस दिस इन नेक्स्ट सेशन. ठीक है, ये कर लो. एंड ये भी सेम है, सिमिलर क्वेश्चन. 15 टाइम्स इक्वल टू, मतलब जो 17 टाइम्स ऑफ अदर्स है. सेकंड ये वाला, दिस वन इज इंटरेस्टिंग. ये मैं नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क है. ये बर्थ डेट वाला होमवर्क है, ये सरप्राइज है आपके लिए. देखते हैं आप कैसे सॉल्व कर रहे हो. सो दिस इज द ट्रेस सेशन. हमने स्पेशल इक्वेशन स्टार्ट किया, फिनिश मतलब इतना ही है. स्पेशल इक्वेशन, देयर इज नथिंग मोर देन दिस. इफ समवन इज टीचिंग यू मोर देन दिस, इट मींस या दैट्स ग्रेट. अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए आपको. बट बीइंग ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा स्पेशल इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, जो है यही है. तो इसको आप अच्छे से एक बार कर लो. ठीक है, एंड हम नेक्स्ट सेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड्रेटिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब यही है भाई, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं. वी विल गो अहेड विद द अदर टॉपिक्स लाइक वी कैन से इनइक्वालिटी. ठीक है, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेरी मतलब बहुत ज़्यादा भाई, मस्ट डू टॉपिक्स. दीज आर द मस्ट डू टॉपिक्स. अगर कैट में कुछ भी नहीं, बस ये तीन टॉपिक करके जाओ ना कैट में कायदे से, और ये तो कर लो स्पेशल इक्वेशन, तो इतना ही करके जाओ. आप दो क्वेश्चन नहीं बना के आए, मेरा नाम बदल देना. दो क्वेश्चन तो आते हैं भाई, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही इसमें. ठीक है, क्वाड्रेटिक मीन्स हायर ऑर्डर इसमें कंसिडर कर ले रहा हूँ मैं, फालतू में नाम बदल जाएगा नहीं तो. ओके, so this is all about the session. Now I'm going to start a Q&A. Okay, so those who have doubt and want to ask me any question, you can connect with me right now. अभी पूछ सकते हो. I'm going to off the recording off करके मैं आपके डाउट्स लेने चालू करूँगा. And this is our rule. Those who are watching a session, वो भाई
अगर आपको Q&A में पार्टिसिपेट करना, यू कैन कम टू अवर लाइव सेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज आर सम आवर ऑफरिंग्स, यू कैन लुक इनटू इट. पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हो चुकी है. यू कैन आस्क गौतमन, ही has enrolled into a personal mentorship. So what is his experience? You can ask him. Okay, if you want to detail. Apart from this, we are providing this 69 series master classes and question booklet. These are the important one. ठीक है, तो अगर आपको इसमें चाहिए ये, तो आप यू कैन लुक फॉर स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम प्लान फॉर एनरोल. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर डन विद द सेशन टुडे. जिसे भी कम्युनिटी ज्वाइन करना है, चेक डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो, अगर आपके ऐसे PDF है, यहाँ पे क्लिक करो और हमारे ग्रुप में आ जाओगे. ओके गाइस, हैव अ गुड डे. जय सिया राम.